تحقیقات کروائیں گے، حساس معاملے پر سیاست کی بجائے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے ریٹائرڈ جج تصدق حسین جیلانی کمیشن چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد بنایا تھا۔ جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، انہوں نے کہا کہ IMF سے $1.1 ارب کی قسط رواں ماہ مل جائے گی۔ عالمی مالیاتی ادارے سے ایک اور معاہدہ ضروری ہے۔ وزیر خزانہ واشنگٹن جائیں گے، جبکہ IMF نئے معاہدے کی شرائط آسان نہیں ہوں گی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ ججز کو ملنے والے دھمکی آمیز خطوط کی تحقیقات کروائیں گے۔ حساس معاملے پر سیاست کی بجائے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج تصدق حسین جیلانی کمیشن چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد بنایا تھا۔ جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا کہ IMF سے $1.1 ارب کی قسط رواں ماہ مل جائے گی۔ عالمی مالیاتی ادارے سے ایک اور معاہدہ ضروری ہے۔ وزیر خزانہ واشنگٹن جائیں گے۔ IMF نئے معاہدے کی شرائط آسان نہیں ہوں گی۔ ادھر سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو مشکوک خطوط ملنے کا یہ معاملہ ہے۔ پوسٹ باکسز کے اطراف CCTV کیمرے ہی خراب نکلے۔ اسلام آباد پولیس نے متبادل ذرائع سے تحقیقات کا دائرہ بڑھا دیا ہے، جبکہ تحقیقات میں پیش رفت سے متعلق عدالتی رجسٹرارز کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے متعلق ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے عثمان رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عثمان۔ بالکل، سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو مشکوک خطوط ملنے کا یہ معاملہ ہے۔ اسلام آباد کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تحقیقات جاری ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تمام جو پیش رفت اب تک ہوئی ہے وہ ہائی کورٹ رجسٹرار کو اور سپریم کورٹ رجسٹرار کو جو ہے وہ بتا دی گئی ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی سامنے بات آئی ہے کہ پوسٹل باکس جہاں سے یہ پارسل بھجوائے گئے تھے تو اس حوالے سے بیشتر CCTV کیمراز جو ہے وہ خراب ملے ہیں، جبکہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے متبادل ذرائع سے تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، جبکہ پوسٹ باکس کے جو فادر سے بھی جو ہے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو مشکوک خطوط اسلام آباد سے بھجوائے گئے۔ CTD کی ٹیم نے باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی نے خطوط کا مشاہدہ کیا ہے، جبکہ ججز کو ملنے والے خطوط کے ساتھ پاؤڈر کی بھی جانچ کی جا رہی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس خبر کے حوالے سے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو مشکوک خطوط اسلام آباد سے بھجوائے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں شیئر کریں گے ہمارے نمائندے شاہد رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شاہد۔ جی بالکل، یہ لاہور ہائی کورٹ کے 5 ججز کو جو ہے مشکوک خطوط ملنے کا معاملہ ہے۔ CCD کی جانب سے جو ہے ٹیم نے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ 5 خطوط جو ہے راولپنڈی اسلام آباد کے پتے سے لاہور بھجوائے گئے ہیں، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ کی ٹیم نے جو ہے تحقیقات کے سلسلے میں راولپنڈی اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئی ہیں۔ پنجاب فورینسک ٹھیک ہے شاہد رضوی، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بشرا بی بی کو کسی قسم کے زہر دینے کے آثار نہیں ملے۔ ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم نے زہر دینے کی تردید کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ ابھی تک فوڈ پوائزننگ کے کوئی اثرات نہیں ہیں۔ اس وقت کوئی ایویڈنس ایسی نہیں ہے کہ ان کو پوائزننگ ہو رہی ہے۔ اگر ان دا پاسٹ کچھ ہوا ہے تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کی ابھی بھی طبیعت پوری 100% ٹھیک نہیں ہوئی تو میں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ کچھ خون کے ٹیسٹ ہونے چاہیے ان کے، اور ایک کیمرہ ٹیسٹ ہونا چاہیے، منہ کے ذریعے کیمرہ ڈال کے کھانے کی نالی کا اور میدے کا اندر سے معائنہ کرنا چاہیے، جس کو گیسٹروسکوپی یا انڈوسکوپی کہتے ہیں۔ وہ میرے خیال سے ضروری ہے۔ مدی گالا میں ان کو دیکھا، پمس کے 4 ڈاکٹرز کی ٹیم بھی میرے ساتھ تھی، ان کا بھی یہی مشورہ تھا کہ یہی ٹیسٹ ہونا چاہیے جو میں نے ریکمینڈ کیا ہے۔ تو اب انشاءاللہ انتظامیہ ہمیں بتائیں گے کہ کب یہ موقف آپ نے جانا ہے۔ بشرا بی بی کو کسی قسم کے زہر دینے کے آثار نہیں ملے، ایسا کہا گیا ہے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم کی جانب سے، اور ان کی جانب سے مزید یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ابھی فوڈ پوائزننگ کے کوئی بھی اثرات اس سے متعلق نہیں ملے ہیں۔ بشرا بی بی کو کسی قسم کے زہر دینے کے آثار نہیں ملے ہیں۔ ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم نے زہر دینے کی تردید کر دی ہے۔ اس وقت کوئی ایویڈنس ایسی نہیں ہے کہ ان کو پوائزننگ ہو رہی ہے۔ اگر ان دا پاسٹ کچھ ہوا ہے تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کی ابھی بھی طبیعت پوری 100% ٹھیک نہیں ہوئی تو میں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ کچھ خون کے ٹیسٹ ہونے چاہیے ان کے، اور ایک کیمرہ ٹیسٹ ہونا چاہیے، منہ کے ذریعے کیمرہ ڈال کے کھانے کی نالی کا اور میدے کا اندر سے معائنہ کرنا چاہیے، جس کو گیسٹروسکوپی یا انڈوسکوپی کہتے ہیں۔ وہ میرے خیال سے ضروری ہے۔ مدی گالا میں ان کو دیکھا، پمس کے 4 ڈاکٹرز کی ٹیم بھی میرے ساتھ تھی، ان کا بھی یہی مشورہ تھا کہ یہی ٹیسٹ ہونا چاہیے جو میں نے ریکمینڈ کیا ہے۔ تو اب انشاءاللہ
इंतजामिया हमें बताएंगे कि कब ये फैसला। और जमात इस्लामी का कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ धरने का ऐलान सामने आया है। जराइम ना रुके तो ईद के बाद वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि सिंध हुकूमत और कराची पुलिस शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो गई है। पुलिस कुछ नहीं कर सकती तो शहरियों को अपना तहफ़्फ़ुज़ करने की आज़ादी होनी चाहिए। जुबानी जमा खर्च से कुछ नहीं होगा, अमली इक़दाम करना होंगे। कराची सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहरों के बासियों को चोरों डकैतियों के हवाले कर दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल जमात इस्लामी के कारकुन की नमाज जनाजा में शिरकत की। तवानाई इस्लाहात ना हुई, बिजली मजीद महंगी होगी। वर्ल्ड बैंक ने तवानाई शोबे के नुकसानात को मईशत के लिए खतरा करार दे दिया है। आलमी बैंक का कहना है कि बिजली का तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर और मवासलात में सरकारी नुकसानात मुसलसल बढ़ रहे हैं। बिजली गैस के कर्जे इंतहाई सतह पर हैं, जबकि तवानाई शोबे की प्रवक्त वसूलियाँ हुकूमत पाकिस्तान को बेहतर करना होंगी। यहाँ पर आपको अपडेट करें कि मुल्क की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है। समंदरी हुदूद में तेल और गैस की तलाश का काम तेज करने का फैसला। वज़ीर आज़म की तेल और गैस की तलाश के लिए गैर मुल्की माहिरीन की खदमात लेने की हिदायत, जबकि दोस्त मुल्कों की कंपनीज के जरिए ऑफशोर ब्लॉक्स में सरमायाकारी भी की जाएगी। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की पीआईए कर्जों की मुंतकली की खबरों की तरदीद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कहना है कि कर्जों की होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल होने के मुतालिक खबरों में सदाकत नहीं है। कर्जों की सूरत हाल वैसे ही बरकरार है। कौमी एयरलाइन के तमाम खसारे, वाजिबात और कर्जे वैसे ही मौजूद हैं। तोरो शोर से जारी है। रमजान का आखिरी अशरा, बाजारों में आवाम का रश बढ़ने लगा है, जबकि मार्केट में पेशावरी चप्पल की मांग में इजाफा हो गया है, लेकिन बढ़ती कीमतों से खरीदार भी परेशान हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं कराची से हमाद यूसुफ। जी, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है और ईद उल फितर में अब कुछ रोज़ ही बाकी है। हर तरफ जो है वो ईद की तैयारियां हमें होती दिखाई दे रही हैं। मार्केटों में जो है वो शहरियों का रश बढ़ता जा रहा है। ख़रीदारी कर रहे हैं लोग, कपड़े ख़रीद रहे हैं, उसी के साथ साथ जूते भी ख़रीद रहे हैं। और लड़कों में मर्द हज़रात में ज़्यादातर रुझान जो है वो ईद पर पेशावरी चप्पल का देखा जाता है। पेशावरी चप्पल जो है वो बहुत जो है पसंद की जाती है, उसको बहुत शौक़ से पहना भी जाता है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। पेशावरी चप्पलें हमारी चल रही हैं, नौरोज़ी चप्पलें चल रही हैं, बलोची चप्पलें हैं, वैरायटी माशाल्लाह बहुत फुल लेदर की चप्पलें हैं। और इस वक्त रुझान जो है नौरोज़ी चप्पल का ज़्यादा है। शिकारी नौरोज़ी कोई टवाल कहलाती है, बहुत अच्छी है। उसके बाद पेशावरी चल रही है। अगर जो है वैरायटी की चप्पल है जिसकी कम से कम कोई कीमत है, जिसकी शुरुआत है वो 1000 रुपये से होती है। 1000 रुपये से लेकर 8 से 9000 रुपये तक की पेशावरी चप्पल जाती हैं। शहरियों का, मर्द हजरात का, यहाँ तक के जो नौजवान हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि पेशावरी चप्पल जो है वो बहुत शौक़ से पहनना पसंद करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त ही चलेंगे जहाँ पे ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आलम के जो डॉक्टर हजरात हैं उनकी मौजूदगी में, ये हमारी डिमांड है कि उनकी मौजूदगी में हो। और ये चीज़ें थी आपके सामने हमने रखनी थी। और खान साहब का मैसेज है और हमारी ये तहरीक ईद के बाद मेरे यहाँ पे बाईं तरफ असद कैसर साहब मौजूद हैं। हमारी एक ग्रैंड अलायंस, पॉलिटिकल अलायंस बन चुकी है जिसका जलसा भी होगा, मुख्तलिफ पार्टीज़ उसमें है और उसका एक नुकाती एजेंडा है और वो है पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती। असद कैसर साहब, ओवर टू यू जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर अयूब साहब ने तो मुलाकात के हवाले से पूरी डिटेल आपके सामने रखी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारी डिस्कशन हुई, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे भी डिस्कशन हुई और बाकी जो है ना उमर अयूब साहब उसकी जो एक्सप्लेनेशन वो दे देंगे। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद हमें भरपूर तरीके से तहरीक लॉन्च कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमारे साथ हमें एलाइज बन गई हैं, जिसमें महमूद चकज़ई साहब, अख्तर मेंगल साहब, जमात इस्लामी, MWM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी तहरीक, तो ये इंशाअल्लाह हमारी नेक्स्ट मीटिंग जो है ना कोयटा में होगी 12 तारीख को अख्तर मेंगल साहब के घर पे। वहाँ से हम पूरे मुल्क में जलसों का शेड्यूल देंगे और वो जलसे जो है ना कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद, पिंडी और कराची, सिंध, अंदर सिंध में, बाकी पूरे पाकिस्तान में जलसों का एक शेड्यूल दे रहे हैं। और सबसे पहला जलसा जो है ना पशीन में होगा
और दूसरा भी बलूचिस्तान में सोचा जा रहा है। तो ये इसकी जो बुनियादी मकसद है कि पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती, जब तक इस मुल्क में कानून बालादस्त नहीं होगा, जब तक तमाम शहरियों के हुकूक बराबर नहीं होंगे, इस वक्त तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह हमारे जजेस जो इस वक्त उनके खिलाफ जो उन्होंने जुल्म किया, उनके ऊपर जो उन्होंने दबाव डाला, जो उनके खत आया है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये लॉफुल कंट्री है, क्या ये मुल्क इस तरह होते हैं? ये तो उन्होंने बनाना रिपब्लिक बना दिया। और इंटरेस्टिंगली आज हमारे KPK की चीफ जस्टिस की जो स्टेटमेंट आई है उस पर भी हमें तशवीश है। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, जो मेरिट को सामने रखते हुए जो हमारे चीफ जस्टिस है उनको भी जो है ना एंटरटेन करना चाहिए, अगर कोयटा के होना चाहिए, क्योंकि हमारे KPK में एक इस वक्त बहुत सीरियस कंसर्न आ रहे हैं कि आप हमारी हुकूमत को अपनी मनपसंद ऑफिसर नहीं दे रहे हैं, आप हमारे फंड रिलीज नहीं करवा रहे हैं, आप जो है ना सेनेट में हमारे इलेक्शन को आपने मुलतवी किया ताकि हमारी नुमाइंदगी ना हो। तो उस सूरत हाल में आप खैबर पख्तूनख्वा को क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या इसका मतलब ये है कि एक सूबी ने अगर तहरीक इंसाफ को इतनी भारी मैंडेट से वोट दिया, आप उसको सजा दे रहे हैं? तो खैबर पख्तूनख्वा की रवैया जो है ना किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं है। हम समझते हैं कि ये मुल्क की इंटीग्रिटी और मुल्क की जो है ना ये फेडरेशन के खिलाफ साजिश है। इसलिए मेरा मुतालबा है पूरी कौम से, इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि ये तहरीक में कौम हमारे साथ होगी। इमरान खान, आप एक बात आज जो इमरान खान ने उसका जो मैसेज था वो ये था कि जो हमारा नज़रिया है उस नज़रिए के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ ख़वातीन और हज़रात, आप मीडिया के तवस्सुत से, कि खान साहब ने जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, विंग्स हैं, उनको सराहा और बिलखसूस सोशल मीडिया टीम, वो उन्होंने हरावल दस्ते का काम किया और उन्होंने बहुत इसको सराहा है। शिबली फराज साहब। शुक्रिया जी। देखिए, बुनियादी तौर पे तो सब बातें हो गई हैं और मुझे बड़ा थोड़ा सा वक्त लग रहा है क्योंकि इतने अरसे के बाद जो है तो कैमरास का सामना किया है। बुनियादी तौर पे मकसद यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक इस वक्त पूरे पाकिस्तान ने एक भरपूर अंदाज में जिसको मैंडेट दिया और जो मैंडेट चुरा लिया गया, अब हमारा काम जो था वो अभी उस लिहाज से हमने उस अपने मैंडेट की हिफाजत के लिए हमने एक जदोजहद करनी है और वो जदोजहद हमने अदालतों में करनी है। हमने जितने भी इससे मुतल्लिका लोग हैं उनसे हमने ये करनी है कि ये हमारा जो मैंडेट है, जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले जो लोग आए हुए हैं, इनमें हमें फ़र्क करना होगा, क्योंकि वो कौम जिसको कि अपना मैंडेट दिए हुए लोगों को अपना हुकूमत ना हो और उसमें वो लोग आएँ जिनको कि अवाम ने मुस्तरद किया है और बुरी तरह मुस्तरद किया है, उन लोगों को मसनद इक़्तिदार पे बिठा देना, उससे जो है तो न जमहूरियत मजबूत होगी, न सियासी इस्तेहकाम आएगा और न मुआशी इस्तेहकाम आएगा और मुल्क मज़ीद गड्ढे में गिरता जाएगा। तो इसलिए ये हमारी ये अपील है कि हम इसको एक मुल्क के तनाजुर में देखें, इस इशू को मुल्क के इस्तेहकाम के, मुल्क में जो इस वक्त जो महंगाई की जो लहर आई हुई है वो सारी नतीजा है इन सारी बातों का, क्योंकि यहाँ पे न कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है और न यहाँ पे कोई अपने लोग भी बाहर जा